دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرش گھر سے نکلتے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا زوہان کے پاس پہنچا تھا۔ زوہان دنین کے بیڈ پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ عرش نے آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ زوہان نے سر اٹھایا تھا اور پھر وہ تیزی سے وہ اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ زوہان! عرش نے اسے زور سے خود میں بھینچا تھا۔ عرش! وہ رو رہا تھا۔ زوہان، تو رو رہا ہے؟ عرش کو اس کی حالت دیکھ تکلیف ہوئی تھی۔ عرش، اسے بولنا، اٹھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس کر یار، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تیری یہ حالت، عرش نے نم لہجے میں کہا تھا۔ عرش! زوہان نے پھر سے اسے بلایا تھا۔ میری جان، میں آ گیا ہوں، پاس ہوں تیرے، عرش نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا۔ عرش نے اسے بٹھایا تھا۔ کچھ کھایا تو نے؟ عرش نے پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ چل آ، کھانا کھاتے ہیں دونوں، عرش نے اسے اٹھانا چاہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، تو جا، زوہان نے کہا تھا۔ زوہان، اب تو ضد کر رہا ہے، شاباش، اٹھ، میں دنین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کہیں بھی، میں یہیں پر لے آتا ہوں تیرے لیے۔ عرش اسے وہیں چھوڑتا خود باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لیے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ یہ لے پکڑ کھا، عرش نے کہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میں ہی کھلا دیتا ہوں، عرش نے نوالا بنایا اس کے منہ کے سامنے کیا تھا۔ منہ کھول، زوہان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ دنین کے بغیر کیسے کھا لوں؟ اس کی آواز میں درد تھا، جیسے شادی کے بعد کھاتا تھا۔ بالکل ویسے، عرش نے کہا تھا۔ جا یہاں سے پلیز، زوہان نے کہا تھا۔ زوہان، ضد مت کر، سمجھا، کھا کھانا، عرش نے زبردستی اس کے منہ میں نوالا بنائے ڈالا تھا، جس پر زوہان نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھ، پتہ ہے تجھے میں تجھ سے زیادہ ضدی ہوں، اب کھلا لیا نا، اب جا یہاں سے، زوہان نے کہا تھا۔ ایک نوالا ابھی تو کھلایا ہے، پورا کھانا کھلا کر جاؤں گا اپنی محبوبہ کو، عرش، زوہان نے سختی سے کہا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو ایسے مجھے دیکھے گا تو میں چلا جاؤں گا؟ جیسے تجھے تکلیف ہو رہی ہے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر، بالکل ویسے ہی مجھے بھی تجھے اس طرح دیکھ کر ہو رہی ہے۔ بھائی ہے تو میرا، عرش کی آواز نم تھی۔ زوہان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا تم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میری زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی تم تینوں ہو۔ پتہ ہے تجھے میں اتنا کیوں خوش رہتا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس میرے 3 بھائی ہیں جو کسی کے پاس نہیں، جو صرف میرے ہیں۔ اس کی آواز نم ہونے لگی تھی۔ زوہان خاموشی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے پتہ ہے کہ تم لوگ خوش ہو تو میں بھی خوش رہتا ہوں، تو مان لے میری بات، کھا لینا کھانا میری خوشی کے لیے، عرش نے پھر سے نوالا اس کے منہ کے سامنے کیا تھا۔ کچھ لمحے زوہان نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا تھا۔ عرش مدھم سا مسکرایا تھا۔ ایک اور بات مانے گا؟ عرش نے پھر سے کہا تھا۔ اب تو فری ہو رہا ہے، زوہان نے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اور تو مجھے روک نہیں سکتا، عرش نے کہا تھا۔ بول، زوہان نے کہا تھا۔ اپنا خیال رکھ، جب تک بھابھی کو ہوش نہیں آ جاتا، اور کھانا وقت پر کھائے گا، کیونکہ میں ہر ٹائم موجود نہیں ہوں گا یہاں۔ زوہان نظر پھیر گیا تھا۔ اسے تو دنین کے پاس بیٹھے وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں یہیں شفٹ ہو جاتا ہوں، زوہان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ ہاسپٹل ہے، اس نے عرش کو جیسے یاد دلایا تھا۔ ہاں پتہ ہے، تو کیا ہوا؟ وہ زوہان کو باتوں میں مصروف کیے اسے ساتھ کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ تو کیا مطلب، گھر نہیں ہے تیرا؟ آفر محدود مدت کے لیے تھی، اب میں کھانا تیرے ساتھ ہی کھایا کروں گا، عرش نے اعلان کیا تھا۔ میں بالکل بھی تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا کچھ۔ ارے یار محبوبہ، اپنے محبوب کو منع کر رہا ہے تو؟ اوپس کر رہی ہے تو؟ عرش دفع ہو جا آپ جہاں سے۔ کیوں ہوں؟ میرا بھائی ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں تیرا منہ توڑ دوں گا،
शर्म नहीं आएगी तुझे छोटे भाई पर हाथ उठाते हुए? बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जा अब। अच्छा पानी तो पी ले, मेरे हाथ सलामत हैं अभी। जुहान ने उससे पानी का गिलास लेते मुंह से लगाया था। हाँ, तब ही सारा खाना मेरे हाथ से खाया। तब किधर थे तेरे हाथ? अर्श ने आंखें छोटी किए उसे घूरा था। तुम मत खिलाता, मैंने कौन सा तुझसे कहा था? लेकिन मैं महबूब हूँ तेरा, मेरा फर्ज बनता था। तू जा रहा है या नहीं? क्यों, तुझे अकेले क्या करना है यहाँ? अर्श प्लीज। ओके जा रहा हूँ, लेकिन देखना फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ हो जा। पक्का? अर्श ने जाते जाते पूछा था। ओके, वो कहते ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। उसने जुहान के लिए खास गार्ड्स का इंतजाम किया था, बल्कि यूं कहें कि तीनों भाइयों ने उसके लिए गार्ड्स रखे थे जो हॉस्पिटल के अंदर भी थे और बाहर भी। जुहान फिर से तनीन का हाथ थामे बैठ चुका था। ज़ावियार सुबह नाश्ता कर रहा था। वो साथ नूर को भी जबरदस्ती करवा रहा था और नूर बस एक ही बात बोले जा रही थी। नूर खामोशी से नाश्ता करो। ज़ावियार पहले हमारी बात माने। नूर नाश्ता करो फिर बात करते हैं। ज़ावियार, वो उदास हुई थी। ज़ावियार ने उससे ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया था। इधर आओ मेरे पास। ज़ावियार दरवाजे के पास खड़ा उसे प्यार से बुला रहा था। नूर ने मुंह बनाया था। नूर आ जाओ, ज़ावियार ने सख्ती से कहा था। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास जा खड़ी हुई थी। ज़ावियार ने उसे बाजू से खींचे खुद के करीब किया था, जिससे वो उसके सीने से जा टकराई थी। ज़ावियार ने उसके माथे पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ओके? हम नाराज हैं ज़ावियार। अच्छा ना लिटिल एंजल, वापसी पर जो कहोगी वो करूँगा। पक्का? ओके लिटिल एंजल। पैंथर घर से निकल चुका था। दुआ खामोशी से अर्श को देख रही थी जो तैयार हो रहा था। उसने अर्श को मुखातिब नहीं किया था, क्योंकि वो जब भी करती तो वो कुछ न कुछ कह ही देता, ऐसा उसे या कुछ ऐसा करता जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ायरा तब भी उठी थी। वो टेबल पर नाश्ते के लिए बैठी थी कि अर्श भी उसके साथ जा बैठा था। अर्श जाओ नाश्ता ला दो, मैं बहुत थक गई हूँ, फिर जाना भी है मैंने। जिस पर अर्श ने उसे घूरा था कि वो उसे ऑर्डर दे रही है। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। उठो, अपने लिए भी लाओ और मेरे लिए भी, गरम करके। जिस पर ज़ायरा गुस्से से उठी थी और किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। 5 मिनट बाद वो ब्रेड गरम किए लाई थी। अर्श ने उसके लिए कप में चाय डाली थी, जिस पर ज़ायरा ने हैरानगी से उसे देखा था। अब तुम मेरे लिए ब्रेड लाई हो तो मैं चाय तो तुम्हें डाल कर दे ही सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। ठीक, ज़ायरा ने कहा था। शुगर डाल दूँ? अर्श ने पूछा था। मैं खुद डाल लूँगी। ओके। अर्श अब मुस्कुराते हुए नाश्ते में मसरूफ़ हो चुका था। ज़ायरा ने खामोशी से नाश्ता किया था। फिर कुछ देर तक उसने वहीं बैठे फ़ोन यूज़ किया था और उठ चुकी थी। अर्श भी उसके पीछे पीछे आया था। वो दोनों कार पोर्च की तरफ बढ़े थे जब ज़ायरा रुकी थी और पेट को पकड़ा था। अर्श भी रुका था। अरे क्या हुआ? अर्श ने फिक्रमंदी से ऐसे पूछा था जैसे उसे बहुत फिक्र हो रही हो। पता नहीं। बताओ तो। मेरा पेट शदीद दर्द कर रहा है, ज़ायरा ने कहा था। ओह नो, अर्श ने आंखें खोले कहा था और ज़ायरा तेजी से अंदर की तरफ भागी थी, जिस पर अर्श ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर बढ़ा था। ज़ायरा रूम का दरवाज़ा धकेलती वॉशरूम में तेजी से बंद हो चुकी थी। ओह माय गॉड, वो बाहर को बढ़ गया था जब उसने पामीर को नाश्ता करते देखा था। वो खामोशी से बैठा नाश्ते में मसरूफ था। हेलो पनीर, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा था। हेलो सर, आए बैठे नाश्ता करें। अरे नहीं पनीर, मैं कर चुका हूँ। वैसे खैर तो है सर, आज आप खुश लग रहे हैं। वो तो मैं हूँ। अच्छा ये बताओ, अरमाखान भाई जुहान के पास ही है ना? जी सर। ओके, तुम नाश्ता करो। अर्श ने इसकी पीठ थपथपाई थी। मजाल है जो ये लड़का बाज आ जाता शरारत से।
दुश्मनों की तो दूर की बात, ये घर वालों तक को नहीं छोड़ता था। वो मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था। पैंथर इस वक्त हॉस्पिटल में ही था। अरमकान, जुहान ने नाश्ता किया? करवाया, अरमकान ने बताया था। और तूने? हाँ, कर लिया। अच्छा ना, घर जाकर तू आराम कर, यहाँ गार्ड्स हैं, ज़ाबियार ने कहा था। और तुम? अरमकान ने पूछा था। मैं कुछ देर यहीं इसके पास रुकूंगा। ओके, मैं जाता हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। ओके, अर्श गाड़ी चलाते गुनगुना रहा था। बदला पूरा हुआ, वो कहते ही हंस दिया था। जबकि वहाँ ज़ायरा का वॉशरूम का दूसरा चक्कर था। क्या हो गया ये? वो पेट को पकड़े बेड पर लेट चुकी थी। अर्श आहिस्ते से गाड़ी चला रहा था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पैंथर जुहान को अपने सीने से लगाए बैठा था। बस मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाई, अर्श चला गया क्या? जुहान ने अचानक याद आने पर पूछा था। घर है वो। तुझे याद आ रही है तो बुलवा लूँ उसे? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अगर मेरे बेटे को याद आ रही है तो मैं उसे कान से पकड़कर तेरे पास लाऊंगा, पैंथर ने प्यार से कहा था। आपने कभी इतने प्यार से बात नहीं की, जुहान ने पूछा था। क्योंकि मेरा बेटा अभी ठीक नहीं है ना, जब ठीक होगा फिर डांट लूँगा। तो उसे भी डांटे ना, वो उठ नहीं रही जो। जुहान का इशारा दनीन की तरफ था। मैं कैसे कहूँ? जब आपका कहना नहीं मान रही तो। अच्छा ये बताओ, अर्श मिला तुमसे? रात को आया था। ज़ाबियार अब उसको साथ लगाए उसके बालों में हाथ चला रहा था। अरमकान रूम में जाते ही फ्रेश हुआ था। फिर वो कमरे से बाहर आया था। नूर वहीं लाउंज में बैठी थी और अरमकान को देखते उसके पास आई थी। भाई, जुहान भाई कैसे हैं? और दनीन कैसी है? ऐसे ही हैं भाभी, जैसे पहले थे। अच्छा, आप बैठे, हम आपको कुछ बना देते हैं। भाभी, मैं खुद बना लेता हूँ। आप थक गए होंगे ना, कोई बात नहीं। थैंक्स भाभी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। भाभी, ज़ायरा किधर है? पता नहीं भाई, रूम में होंगी। ओके, मैं देखता हूँ। जबकि पामीर का वॉशरूम का दूसरा चक्कर था। पामीर रूम से बाहर आते ही गिरने वाला हुआ था। अरे क्या हुआ? अरमकान ने इसे देखते पूछा था। पता नहीं सर, लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पेट में बड़ा दर्द है, रेस्ट करो तुम। जी सर। वो कमरे में पड़ा था कि अचानक फिर से वो वॉशरूम की तरफ भाग पड़ा था। अरमकान ज़ायरा के रूम में गया था, जो तभी वॉशरूम से निकली थी और बेड पर गिर चुकी थी। क्या हो गया तुम्हें माय लेडी? मत पूछो अरमकान, वो बेड पर गिरी बोली थी। बताओ तो माय लेडी, आज खैर तो है? अरमकान, पता नहीं मैंने क्या खा लिया, मेरी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। वो रोने वाली हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम कह रही हो, अरमकान ने कहा था। अरमकान, मुझ में बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्या खाया, 10 से 15 चक्कर वॉशरूम के लगा चुकी हूँ। अरमकान ने हैरानगी से उसे देखा था। उधर पामीर भी यही कह रहा था। और तुम भी? क्या खाया तुम दोनों ने? अरमकान ने पूछा था। कसम से अभी नाश्ता किया था और कुछ नहीं। अच्छा, तो नाश्ता तो ज़ाबियार ने भी किया होगा, अर्श ने भी, तो सिर्फ तुम दोनों की तबीयत क्यों ख़राब है? अरमकान ने पूछा था। और वो दोबारा वॉशरूम की तरफ भागी थी। जबकि अर्श गाड़ी चलाते उनका हाल सोचते हंस हंस कर लोट पोट हुआ था। पामीर भी अब थक हार कर बेड पर लेटा था। नूर ने अरमकान का खाना वहीं उसे ला कर दे दिया था, जबकि ज़ायरा मुसलसल वॉशरूम के चक्कर लगा रही थी। ज़ायरा को ज़रूर पता चल जाता ये किसकी शरारत है, अगर वो सोचती तो, लेकिन अभी तो उससे उठना भी मुश्किल था। अरमकान उस पर नजरें गाड़े खाना खा रहा था। अरमकान, ज़ायरा ने थके से लहजे में उससे पुकारा था। जी माय लेडी, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अब उठने की। ये तो तुम्हारी गलती है ना, तब तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो अभी मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता। ज़ायरा ने गुस्से से उसे घूरा था। तुम कितने बेशर्म हो, ज़ायरा ने गुस्से से कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। ज़ायरा फिर से वॉशरूम के लिए उठी थी।
اور وہاں پامیر بھی کئی چکر لگا چکا تھا واشروم کے۔ ارمغان نے اسے دیکھا تھا۔ چلو آؤ تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں، ارمغان نے کہا تھا۔ اگر یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہوا نا میرے ساتھ تو وہ بچے گا نہیں میرے ہاتھوں، ظاہرہ نے سخت غصے سے کہا تھا۔ ہاں پتہ ہے تم آفت ہو، وہ کہتے ہنس دیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تھی۔ وہ گرتی ابھی کہ ارمغان نے اسے پکڑا تھا۔ سنبھل کر مائی لیڈی، چلو مجھ میں اب نہیں ہمت۔ وہ گر چکی تھی۔ ارمغان اسے سہارا لے کر باہر لا رہا تھا۔ رکو، پامیر کو بھی پوچھ لوں، کہیں بے ہوش ہی نہ ہو گیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ زمین پر لیٹا تھا۔ پامیر، ارمغان نے اسے آواز دی تھی۔ اس نے تھکے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ آؤ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تم دونوں کو، ارمغان نے کہا تھا۔ سر مجھ سے بالکل بھی نہیں اٹھا جا رہا۔ اوکے، میں ڈاکٹر کو یہیں فون کر کے بلا لیتا ہوں۔ ارمغان نے ظاہرہ کو روم میں چھوڑا تھا اور ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا تھا۔ پینتھر نے ایلیا کو زوہان کے پاس رکنے کا کہا تھا اور خود وہ اپنی بلڈنگ پر جا چکا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر آ چکا تھا۔ اس نے پامیر اور ظاہرہ دونوں کو چیک اپ کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں کروٹن سیڈز دیے ہیں کسی نے، ڈاکٹر نے پامیر کو چیک کر لیا تھا۔ اب ظاہرہ کا چیک اپ کر کے بتا رہا تھا، جس پر ظاہرہ نے نیند بے ہوشی میں ہوتے ہوئے ارمغان کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے لیکن خوش قسمتی سے مقدار بہت کم دی گئی تھی، ڈاکٹر کہتے ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ارمغان نے گارڈ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر کو واپس ہاسپٹل چھوڑ دے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارے بھائی کی ہی حرکت ہو سکتی ہے، اگر اس نے یہ کیا ہوگا نا تو میرے ہاتھوں وہ بچ نہیں پائے گا، یاد رکھنا تم، ظاہرہ نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز سے پتہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ عرش بیچارہ کیوں کرے گا ظاہرہ، بے شک وہ شرارتیں کرتا ہے لیکن وہ یہ حرکت تو بالکل نہیں کر سکتا۔ ارمغان نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ جاؤ اور پوچھو اس سے اور بتا دینا کہ سب سے پہلے اس کا منہ میں ہی توڑوں گی، ظاہرہ نے دانت پیستے غصے سے کہا تھا، جبکہ پامیر نے بھی یہی کہا تھا کہ جس کی یہ حرکت ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ارمغان گھر سے بھی نکلتا کہ اس سے فون آیا تھا۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلا تھا، اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ تیز ڈرائیونگ کرتا سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی زبان سے الفاظ تک مشکل سے نکلے تھے۔ ایمرجنسی میں، زوہان نے بتایا تھا۔ ارمغان بھی اس کے ساتھ ہی گرنے والے انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، ایک نرس باہر آئی تھی جب ارمغان نے اس سے پوچھا تھا۔ کیسا ہے وہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ آپریشن جاری ہے سر، آپ بس دعا کریں، نرس کہتی چلی گئی تھی، اور وہ دونوں بھائی ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشان بیٹھے تھے۔ عرش اسی ہاسپٹل میں تھا جس میں دنین تھی۔ سب کو اس کی حالت نہایت کریٹیکل بتائی گئی تھی۔ تمام نیوز چینلز پر خبر پھیل چکی تھی کہ عرش سکندر پر حملہ ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی حالت نہایت کریٹیکل ہے۔ سب پریشان تھے۔ وہ نہایت تکلیف میں تھا۔ اس کی حالت نہایت نازک تھی۔ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ پورا دن گزر چکا تھا لیکن ڈاکٹرز یہی کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کریں۔ نور نے پینتھر کو کال کی تھی اور پینتھر نے اسے بتایا تھا کہ آج وہ گھر نہیں آئے گا، اسے کام ہے تو وہ سو جائے، جبکہ نور کو کہاں عادت تھی اب اس کے بغیر رہنے کی۔ زاویار، ہمیں نیند نہیں آئے گی، نور نے معصومیت سے کہا تھا۔ کھانا کھایا تم نے لٹل اینجل؟ زاویار نے پوچھا تھا، جس پر نور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لٹل اینجل، منہ سے بولا کرو، میں تمہارے سامنے تھوڑی ہوتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے تم نے نہیں کھایا ہوگا یقیناً۔ وہ بس یہی بولی تھی۔ اوکے آتا ہوں 10 منٹ میں، ویٹ کرو۔ تھینکس زاویار، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی، لیکن زاویار نے نور کو عرش کا نہیں بتایا تھا اور بتانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ گھر پہنچا تھا۔ نور کو لاؤنج میں لیٹا پا کر وہ اس کے پاس آیا تھا اور جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا، جس پر نور کی نیند پل میں غائب ہوئی تھی۔ ڈاکو آ گئے، ڈاکو،
नूर ने नींद से उठते कहा था, जिस पर जावियार ने हैरानगी से उसे देखा था। खैर है लिटिल एंजल? वो हम समझे वो नजरें झुका चुकी थी। तुम्हें मैं डाकू लगता हूँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने हैंडसम शोहर को डाकू कहते हुए। जावियार ने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी, लेकिन हमने आपको थोड़ी कहा था, हमें पता नहीं चला। और आपकी गलती है, आपको आराम से हमें उठाना चाहिए था। वाओ लिटिल एंजल, जुबान काफ़ी तेज़ी से चला लेती हो। जावियार ने उसे घूरा था। हमें नीचे उतारें, नूर ने भी जवाबन कहा था। ना उतारूं तो क्या कर लोगी तुम? हम कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। हमारी बिल्ली नहीं लाई आपने? नूर ने मासूमियत से कहा था। कल बात करेंगे, अभी खाना खाते हैं लिटिल एंजल। अच्छा। जावियार ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था और फिर उसे अपने साथ सुलाया था। वो उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज थी और ऐसा नहीं हो सकता था कि नूर उसे बुलाए और जावियार सिकंदर ना आए। ये नामुमकिन सी बात थी। सब परेशान थे। ज़ायरा और पामीर बेड पर पड़े थे। उन दोनों को इस वक्त हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। ज़ुहान तो पहले ही टूटा बिखरा पड़ा था, ऊपर से अर्श की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। उनका जान से प्यारा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था इस वक्त, और वो परेशान थे। आंखों में बेशुमार नमी थी, जैसे अभी रो देंगे। अर्श के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे, उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे वो, लेकिन उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका भाई किस कदर तकलीफ में होगा, वो किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। ये रात आसान नहीं थी उनके लिए। वो बेहद परेशान थे। वो उनके जिगर का टुकड़ा था, लाडला था वो। सुबह होने को थी। ज़ुहान उठा था। हॉस्पिटल में ही उसने वज़ू करके नमाज अदा की थी। अरमगान ने भी नमाज पढ़ी थी। आज सालों बाद दोनों भाइयों ने नमाज अदा की थी। ज़ुहान रो रहा था, दुआ मांगते हुए। चेहरा आंसुओं से तर था। एक तरफ वो रो रहा था तो दूसरी तरफ अरमगान। आज वो दोनों अपने भाई की सलामती की दुआ मांग रहे थे। आखिर उन्होंने दुआ मांगी, चेहरे पर हाथ फेरे और उठ खड़े हुए थे। थोड़ी ही देर बाद रोशनी हो चुकी थी। वो कॉरिडोर में बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर उनके पास आया था कि कैसा है हमारा भाई? दोनों ने एक साथ पूछा था। उनकी आवाज़ लड़खड़ा चुकी थी। उन्हें पता चला था उसे बहुत गोलियां लगी हैं। आई एम सॉरी, हम बचा नहीं पाए, डॉक्टर ने बमुश्किल उन्हें बताया था। कि क्या? उनका दिल जैसे बंद हुआ था, सांस लेना मुश्किल था। उन्हें जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। और ज़ुहान ने तेजी से डॉक्टर के गिरबान को पकड़ा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी ये कहने की? हाँ, उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ी थी। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो वुल्फ है, वो अर्श है, वो नहीं जा सकता। वो चीख चिल्ला रहा था, जबकि अरमगान साकिन खड़ा किसी गैर मर्ई नुक्ते को देख रहा था। तुम सब बेकार डॉक्टर हो, आगे मेरी बीवी को नहीं बचा पाए और अब मेरे भाई को? मैं तुम सब की जान ले लूँगा। मुझे मेरा भाई चाहिए, अभी इसी वक्त। उसने डॉक्टर को झटके से दूर फेंका था और खुद इमरजेंसी रूम में पड़ा था। अरमगान भी होश में आता तेजी से कमरे में दाखिल हुआ था। पामीर भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसे अर्श से बहुत प्यार था। वो भी रूम का पूछते वहां गया था। अर्श के ऊपर सफ़ेद कपड़ा दे दिया गया था। ज़ुहान ने खींच कर सफ़ेद कपड़ा उस पर से हटाया था। नज़र उसके चेहरे पर थी, जहां आज उदासी थी। अर्श, ज़ुहान ने आहिस्ते से उसे पुकारा था। अर्श, अरमगान ने भी उसे पुकारा था, लेकिन उसमें कोई हरकत ना हुई थी। अर्श, उठ आराम से, वरना बहुत मारूंगा मैं, ज़ुहान ने सख्ती से कहा था, लेकिन वो नहीं उठा था। अब वो तीनों रो रहे थे। अर्श, उठना। अर्श प्लीज़, अर्श उठना। वो रो रहे थे। पूरे कमरे में उनकी सिसकियों की आवाज़ थी। अर्श प्लीज़ उठना। ज़ुहान उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिए हुए था। अर्श उठ प्लीज़, आज दिन को तुझे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगा।
इतने दिनों से तूने नहीं खाया ना? अरमागान रोते हुए कह रहा था। आज वो अमेरिका के माफिया बुरी तरह रो रहे थे, उसके लिए जो उनकी जान था। सर उठे ना यार, प्लीज, आप कहेंगे तो सफाई कर दूंगा पूरे घर की, प्लीज उठें। पामीर बुरी तरह रो रहा था। वो तीनों अब धाड़े मार कर रो रहे थे। अर्श उठना। जोहान अब उसके ऊपर लेट चुका था। अर्श आंखें खोल दे, प्लीज खोल ना मेरी जान, अरमागान ने रोते हुए कहा था। अर्श सर उठे ना, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता ना, एलिया बुरी तरह रोते सिसकते हुए बोली थी। अर्श आई लव यू ना, जोहान ने रोते हुए कहा था। अर्श उनसे कहता था कि मुझे लव यू बोला करे आपको जब जब मुझ पर प्यार आए, जिस पर जोहान कहता था कि तू हमारी महबूबा नहीं है, लेकिन अर्श की महबूबा तो जोहान था। अर्श मेरा बच्चा उठ, तू ऐसे नहीं जा सकता, अरमागान ने रोते हुए कहा था। अर्श सर आई लव यू, पामीर ने भी रोते हुए कहा था। अर्श प्लीज उठ जा, मैं नहीं रह सकता तेरे बगैर, तुझे जानते हुए कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है। जोहान और अरमागान के आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। उनका यकीन करना मुश्किल था कि वो उनसे दूर जा रहा था। वो नहीं यकीन कर पा रहे थे कि अर्श सिकंदर उनके दरमियान होते हुए भी नहीं था। वो सब धाड़े मार कर रो रहे थे। जब पामीर का फ़ोन बजा था, उसको फ़ोन बजने का एहसास नहीं हुआ था। अब की बार फ़ोन दोबारा बजा था। पामीर ने फ़ोन उठाया था। किधर थे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये बताओ, अर्श कैसा है? पैंथर ने पूछा था। वो पामीर से बोलना मुश्किल हुआ था। क्या वो? बोलो सर, वो अर्श सर। अब बताओगे पामीर? अब की बार पैंथर झुंझुलाया था। अर्श, पामीर ने अपने आंसू रोकने चाहे थे, जो मुश्किल काम था, वो नहीं कर पा रहा था। अर्श और वो लड़ते थे, लेकिन प्यार उससे कई गुना ज्यादा था उनमें। पामीर बोलो, अब की बार पैंथर ने सख्ती से कहा था। अर्श सर नहीं रहे हमारे बीच। पामीर ने ये अल्फाज जिस तरह अदा किए थे, ये वही जानता था कि वो कैसे बोल रहा है। पैंथर को आवाज़ सुनाई दे रही थी, उन सब के रोने की। वो बुरी तरह रो रहे थे। वो धाड़े मार कर रो रहे थे, सिसक रहे थे। वो जो कई साल पहले रोए थे, उसके बाद उन्होंने रोना नहीं सीखा था। आज वो रो रहे थे। वो मजबूत माफिया आज बिलक बिलक कर रो रहे थे। क्या कहा तुमने पामीर? मैंने सुना नहीं, पैंथर ने दोबारा पूछना चाहा था, जैसे यकीन न आया हो। सर वही जो आपने सुना, पामीर ने रोते हुए कहा था। अच्छा, कैमरा ऑन करके मुझे अर्श का चेहरा दिखाओ। पामीर को हैरत हुई थी। वो ऐसे क्यों कह रहा था? क्या उसे दुख नहीं था? वो खुद आ सकता था। पामीर की खामोशी को देख पैंथर दोबारा बोला था। पामीर, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ। ज़ावियार ने अब की बार वीडियो कॉल की थी, जैसे पामीर ने मुश्किल से उठाया था। कैमरा घुमाते उसने दिखाया था। पैंथर ने सबको रोते देखा था, जो फूट फूट कर रो रहे थे। पामीर, कैमरा अर्श के चेहरे के करीब करो। पामीर ने वही किया था। अर्श मेरा बेटा, उठ जाओ, देखो मैं रो रहा हूँ, ज़ावियार ने रोते हुए कहा था। अर्श बेटा उठो, अब तुम नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारी चीज़ें मुझे याद दिलाएंगी, इसीलिए तुम्हारा बैंड बाजा, तुम्हारी पसंदीदा गाड़ियाँ, बाइक्स, ब्रांडेड कपड़े, जूते सब गार्ड्स ले जा रहे हैं, किसी को दे देंगे बेचारे को। तुम्हारे कोट जिन पर हीरे लगे थे, तेरा फर्नीचर, में सब कुछ घर से निकलवा रहा हूँ बेटा। तुम फिक्र मत करना, जिसके पास भी जाएगा वो बहुत ख्याल रखेगा तेरी चीज़ों का। अरमागान ने रोते हुए उसे देखा था। ज़ावियार, पागल हो चुका है तू, क्या कह रहा है ये? अरमागान चिल्लाया था कि वो इस वक्त कैसी बातें कर रहा था, लेकिन ज़ावियार ने उसे नज़रअंदाज किया था। तेरा वुल्फ भी दे रहा हूँ किसी को, तेरे अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ, सब सामान तेरा घर से निकल रहा है, तू फिक्र ना कर। तेरी तस्वीरें, तेरे नाम पर ली हुई चीज़ें, घड़ियाँ, परफ्यूम, सब कुछ निकाल रहा हूँ घर से। और अभी ज़ावियार ने यही कहा था कि अचानक अर्श झटके से उठ बैठा था, सफ़ेद कपड़ा हटाते जैसे कफन फाड़ कर मुर्दा जिंदा हुआ हो।
कमरे में मौजूद सबकी सांसें थमी थी। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी और दुनिया से लौटा हो, और ज़ावियर जो कर रहा था वो एक्टिंग थी रोने की। कितने पत्थर दिल इंसान हैं आप, आपको ज़रा बराबर रोना नहीं आया, तरस नहीं आया छोटे भाई पर? और ख़बरदार, जो मेरी किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो समझे आप, होते कौन है आप मुझे घर से निकालने वाले? वो बोलता जा रहा था और ज़ावियर मुस्कुराहट दबाए उसे सुन रहा था, और बाकी सब मुंह खोले हैरत से उस ड्रामेबाज को देख रहे थे। मैं बता रहा हूँ, खबरदार मेरी कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई ड्रैगन, और मेरे वुल्फ को तो कहना ही कुछ मत। कितनी आसानी से कह रहे थे कि मैं तेरा वो भी निकाल रहा हूँ और ये भी। शर्म नहीं आप आई आपको ये कहते हुए कि मेरा छोटा भाई मर रहा है और मैं ये कर रहा हूँ? वो गुस्से से बोली जा रहा था। पैंथर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। अगर वो वुल्फ था तो सामने भी पैंथर था। वो उसका बड़ा भाई था। वो अर्श के ड्रामों में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वैसे तू मर कहाँ रहा था? तू तो एक्टिंग कर रहा था, कहना पड़ेगा। कमाल का एक्टर है तू, किसी को भिनक तक ना पड़ने दी तूने। पैंथर ने तालियां बजाते उसे दाद दी थी, जिस पर अर्श ने दांत पीसे उसे देखा था। मेरा सामान? अर्श ने दोबारा पूछा था। वहीं पड़ा है जहाँ था, पैंथर ने कहा था। ये सब क्या है? अरमकान अब की बार बोला था। तेरा भाई बहुत बड़ा एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है लाश बनने की? पैंथर ने तंज करते कहा था, और अरमकान और बाकी सब ने अपना रोना भूलकर उसे गुस्से से देखा था। भाई कितने पत्थर दिल हैं आप, थोड़ा रो लेते तो क्या जाता आपका? अर्श ने जैसे शिकवा किया था। तू मुझे घुमाएगा अर्श, इतना बड़ा हो गया है तू? पैंथर ने आईब्रो उठाए उसे देखा था। ये सब क्या हो रहा है, कोई कुछ बताएगा? जोहान ने पूछा था। भाई मुझ पर वाकई हमला हुआ था, अर्श ने बताया था, और ये सच भी था क्योंकि गोली उसे लगी थी लेकिन बाजू को छू कर गुजरी थी। हाँ पता है, तुझ पर हमला हुआ था। मैंने कब कहा कि नहीं हुआ था? पैंथर ने कहा था। और वो दानियाल हशमत ने किया था, ये भी पता होगा फिर तो आपको? अर्श ने गुस्से से पैंथर से पूछा था। उसे शदीद गुस्सा था पैंथर पर, जिसने इसका प्लान चौपट कर दिया था। हाँ पता है, लेकिन तू कौन सा कम है? मेरे इतने गार्ड्स को गोलियां लगी और तूने किसी गार्ड के कपड़े खुद पहन लिए, खून से भरे हुए, और तुझे उन कपड़ों में दानियाल ने देखा कि शायद तुझे सीने पर गोलियां लगी हैं, क्योंकि उसे लगा तू गार्ड्स में था और शायद तुझे लग चुकी हैं। फिर उसने तुझे जाते देखा, पीछे से गोली चलाई जो तेरे बाजू को छू कर गुजरी, लेकिन उसे लगा ये उसकी आखिरी गोली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी पहली गोली थी, क्योंकि इतना सीधा तू नहीं है। पैंथर ने सारा कुछ कह डाला था। अच्छा, जब पता था तो फोन क्यों किया फिर? अर्श ने दांत पीसते हुए पूछा था। मैंने सोचा तेरी लाश बनने की एक्टिंग देख लूं, और तुझे जरा शर्म नहीं आई इन सब को रुलाते हुए? पैंथर ने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी, लेकिन सामने भी अर्श सिकंदर था, उसे कहाँ आने वाली थी। किस बात की शर्म यार भाई, मैंने कुछ नहीं किया। वो भी बोल रही था कि उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था जो अरमकान गुस्से से मार चुका था। अर्श ने मुंह पर हाथ रखे उसे देखा था, जो निहायत गुस्से में था। पैंथर ने दिल से सीन का मजा लिया था, और अचानक उसे दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़ पड़ चुका था जो जोहान ने मारा था। अर्श को यकीन नहीं आया था। अभी जो रोते हुए उसे कह रहे थे कि तुझसे प्यार करते हैं, और अभी मार रहे थे। तुझे अंदाजा भी है हम पर क्या गुजरी है पूरा दिन, पूरी रात? अरमकान शदीद गुस्से में था। तू अंदाजा नहीं लगा सकता हम किस कंडीशन में थे। दिल बंद हो रहा था, सांस नहीं आ रहा था हमें, जोहान ने गुस्से से कहा था। अर्श का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, बल्कि उसने डॉक्टर्स को पैसे दिए हुए थे सब बोलने के, और खुद उसने मजे से इमरजेंसी रूम में बैठकर स्नैक्स खाए थे, गेम्स खेली थी, सेल्फीज ली थी, और फोन यूज किया था। सॉरी भाई, वो पहली बार बोल रहा था, दोनों गालों पर हाथ रखे, क्योंकि अरमकान का गुस्सा उसे पता था। वो छोड़ता नहीं था किसी को गुस्से में। उसे जब गुस्सा आ जाए तो वो अपने आप में नहीं रहता था। वैसे तो उससे गुस्सा बहुत कम ही आता था, लेकिन जब आता था तब अर्श भी उसके सामने नहीं बोल पाता था। क्या सॉरी? हाँ, तेरी सॉरी से क्या फायदा होगा? मेरी पूरी रात जिस अजियत में गुजरी है वो तू महसूस कर सकता है?
नहीं, तू कैसे करेगा? तुझे तो शौक है ना ये सब ड्रामे करने का, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने का। मैं पल पल मर रहा था जब डॉक्टर्स ने ये कहा कि तू नहीं। वो कह नहीं पाया था, वो गुस्से में था और ज़ावियार उसका गुस्सा समझ रहा था। वो जो कह रहा था वो सब ठीक कह रहा था। भाई ऐसे मत बोलें, मैं कभी आप सबको तकलीफ में नहीं देख सकता, वो आहिस्ते से बोला था। ओ जस्ट शट अप, मुझे नहीं आना तेरी बातों में। अरमान खान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसे मारो, इतना मारो कि आज के बाद हमसे तो ये ऐसा झूठ बोलने का सोचे भी ना। शुरू इसके खूबसूरत चेहरे से करना और मेरा हिस्सा लाजमी डालना। पैंथर ने संजीदगी से उन्हें कहा था और सबने इसे पकड़ा था। मैं चेहरे से ही शुरू करूंगा, जोहान ने गुस्से से उसे पकड़ते कहा था। भाई यार, मेरे चेहरे पर पहले 2 थप्पड़ मार चुके हो, निशान बन जाएंगे। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहेगी, बल्कि तुझे मारने के बाद सफ़ेद कपड़े में तेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा तू। अरमान खान ने दांत पीसते गुस्से से कहा था। भाई ये गलत बात है, मैं भाई हूँ आपका। आपने कहा था मैं उठूंगा, आप मेरी हर बात मानेंगे। हाँ मानूंगा, लेकिन तेरी वही हालत करने के बाद जो डॉक्टर्स ने बताई थी। पैंथर हंसते हुए फोन काट चुका था। भाई नहीं, मेरे चेहरे को हाथ मत लगाना प्लीज। अर्श ने अपने चेहरे को हाथों में छुपाया था और छलांग लगाते बेड से नीचे उतरा था। अभी तो तेरी तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं मेरा बेटा। अरमान खान ने बाजू फोल्ड किए थे और अर्श को आज पहली दफा डर महसूस हुआ था अपने भाइयों से। भाई नहीं, अर्श ने पीछे को कदम बढ़ाए थे और एदिया और पामीर ने उसे पकड़ा था। छोड़ो मुझे वरना, अर्श ने कहा था। आज वरना का मतलब हम बताएंगे, अरमान खान और जोहान ने कहा था और उसे पकड़ चुके थे। ज़ावियार हमारी बिल्ली, नूर ने मासूमियत से कहा था। ओह गॉड लिटिल एंजल, अच्छा क्या तुम्हें वाकई में चाहिए? जी, नूर ने कहा था। लेकिन इसके बाल नहीं होंगे नूर। तो क्या खुद आ जाएंगे? आ जाएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन वो थोड़ी बड़ी होगी, ज़ावियार ने कहा था। कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाहिए। ओके ठीक है, आओ। ज़ावियार उसे लाउंज में लाया था। आंखें बंद करो लिटिल एंजल, नूर ने खुशी से आंखें बंद की थी। एक गार्ड उस बिल्ली को छोड़ कर गया था। ज़ावियार ने उसे नूर के सामने बिल्कुल करीब खड़ा किया था और नूर का हाथ उसके सर पर फेरा था। लिटिल एंजल आंखें खोलो, नूर ने खुशी से उसे महसूस करते आंखें खोली थी और अगले ही लम्हे पूरे घर में उसकी चीखें गूंजी थी। नूर जान, लिटिल एंजल, ज़ावियार ने उसे खुद के करीब किया था। ज़ावियार ये क्या है? वो चीखते हुए बोली थी। नूर जान, ये बिल्ली है। नहीं ज़ावियार नहीं, ये बिल्ली नहीं, ये बिल्ला है, वो घबराते हुए बोली थी क्योंकि सामने वाइट पैंथर था। लिटिल एंजल, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें बिल्ली चाहिए, चाहे वो बड़ी हो। अब मुकरो मत। नहीं ज़ावियार, हमें ये नहीं चाहिए। ज़ावियार ने उसे झटके से बाहों में उठाते उसे पैंथर की पीठ पर बिठा दिया था। ज़ावियार, वो अब फिर से चीखी थी और ज़ावियार ने उसे पकड़ा हुआ था। देखो लिटिल एंजल, तुम्हारा तो फायदा हो गया, इस बिल्ली पर तुम बैठ भी सकती हो, वो मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि नूर घबराई हुई थी। ज़ावियार प्लीज उतारे, हमें डर लग रहा है। वो रोने की तैयारी पकड़ चुकी थी। नूर जान, यार देखो कितनी प्यारी बिल्ली है। पैंथर बड़ी बिल्ली की आवाज़ निकाल, पैंथर ने वाइट पैंथर से कहा था, जिस पर वाइट पैंथर ने ज़ावियार को देखा था जैसे कह रहा हो मैं और बिल्ली। ज़ावियार ने उसे नहीं उतारा था और वो अब रोना शुरू हो चुकी थी। ज़ावियार ने उसे तेजी से अपनी गोद में उठा लिया था। नूर जान, रोना नहीं, बता रहा हूँ मैं। इसको भेजें, हमें डर लग रहा है। अच्छा रिलैक्स, भेजता हूँ। ज़ावियार ने पैंथर को बाहर भेजा था और गार्ड उसे दरवाजे से ही ले जा चुका था। नूर जान बस करो अब, हम नाराज हैं। वो अब रोना बंद कर चुकी थी। नूर, तुमने खुद ही कहा था, इसमें मुझ मासूम की क्या गलती? आप मासूम बिल्कुल भी नहीं हैं, नाटक करते हैं मासूम बनने का। नूर, ज़ावियार ने सदमे से उसे देखा था। हमसे बात मत करें, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। ज़ावियार ने उसका गाल चूमा था। मत करें ना हमसे बात, नूर ने अब की बार पूरी नाराज़गी दिखाते कहा था। लेकिन मैं तो बोला ही नहीं, मैंने तो प्यार किया।
زاویار نے تسلی سے کہا تھا، جس پر نور نے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم ناراض ہوں جب بھاڑ میں جائیں۔ لٹل اینجل، مجھے بہت پرواہ ہے تمہاری، میں تمہیں ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن ابھی تو ناراض کر دیا نا، نور نے کہا تھا۔ وہ بھی زاویار کی گود میں بیٹھی تھی۔ لیکن نور، میں نے تمہاری خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ آپ بہت جھوٹے ہیں، سیدھے سیدھے کہیں نا کہ ہمیں بلی لا کر نہیں دے سکتے۔ نور، کیونکہ تم اپنا سارا پیار اور ساری توجہ اس پر لٹا دو گی نا، اور جب تم کسی چیز میں مصروف ہوتی ہو تو کھانے کا بھی خیال نہیں رہتا تمہیں، اس لیے میں بالکل نہیں لا کر دوں گا۔ دیکھا، ہمیں پتہ ہی تھا آپ جھوٹے ہیں، آپ ہمیں لا کر دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اب رونے والی ہوئی تھی۔ نور جان، چلو روم میں چل کر بات کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، بالکل نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرتے اچھے بچے، چلو، زاویار نے سختی سے کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس کی گود سے اترتی کہ وہ اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا۔ بالکل نہیں، بیٹھی رہو چپ چاپ، لا دوں گا، وعدہ کریں۔ ابھی میں نے لا کر دی تھی لیکن تمہیں پسند نہیں آئی۔ اتنی خوفناک، اتنی بڑی اور بڑے دانتوں والی، بڑے منہ والی کون سی بلی ہوتی ہے؟ زاویار اپنے پینتھر کی برائیاں اس کے منہ سے سنتے صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور جان، بس کرو۔ کیوں بس کروں؟ آپ کو بیوی سے زیادہ وہ عزیز ہے۔ نور اب مکمل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ زاویار نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ نور، تم زندگی ہو، میری جان ہو، تم سے بڑھ کر کچھ نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی ہمیں بلی نہیں لا کر دی نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نور، کیا تمہارا لڑنے کا موڈ ہے؟ زاویار نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ناراض ہے۔ زاویار نے اس کا حجاب گردن سے ہٹاتے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ نور نے آنکھیں بند کرتے اس کے بازو کو پکڑا تھا۔ زاویار، ہم ناراض ہیں۔ شش، کرتا ہوں تمہاری ناراضگی دور۔ وہ جا بجا اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ زاویار اب اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسوں کو خود میں منتقل کر رہا تھا۔ نور اس کی گردن میں بائیں ڈالے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ زاویار اسے صوفے پر گراتے خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ زاویار، میری لٹل اینجل، وہ دوبارہ اس کے لبوں کو شدت سے چومتا، اس کی سانسوں کو خود میں الجھانے لگا تھا۔ زوہان، ارمغان اور پامیر اچھا خاصا اسے مار چکے تھے اور انہوں نے شروع اس کے چہرے سے ہی کیا تھا۔ عرش بیچارہ خود کو ان سے بچا نہیں پایا تھا۔ عرش نے ڈھال سا بیڈ پر بیٹھا نگور رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ انہوں نے لال کر دی تھی، گورے چہرے پر تھپڑوں اور مکوں کے نشان پر پڑ چکے تھے۔ اس نے ابھی تک خود کو دیکھا نہیں تھا، ورنہ خود کی حالت دیکھتے ابھی تک بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ وہ چاروں اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ سر بہت پیارے لگ رہے ہیں اب، ایلیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عرش کو شدید غصہ آیا تھا ان سب پر۔ چل شاباش، لیٹ۔ ارمغان نے زبردستی سے لٹایا تھا اور اس کے اوپر وائٹ چادر دیتے اس کی تصویریں بنائی تھی۔ بھائی، آپ اچھا نہیں کر رہے یہ، عرش نے کہا تھا، اور ارمغان نے اپنے اکاؤنٹ پر اس کی تصویریں اپلوڈ کر دی تھی، ساتھ میں رونے والے سٹکرز لگائے تھے۔ دنیا کے لیے تو مر چکا ہے، اب تو نہ شاپنگ پر جا سکتا ہے، نہ کلب میں، نہ ریسٹورنٹ میں، اور نہ کسی اور جگہ۔ اب تو صرف ایک کمرے میں بند رہے گا۔ بھائی، عرش نے اسے پکارا تھا۔ چپ کر۔ اب ارمغان اس کا فون چیک کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے عرش کا واٹس ایپ کھولا تھا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ ارمغان نے غصے سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ یہ تو مجھے کہنا چاہیے نا، آپ کو مجھے مارتے وقت نہیں آئی، عرش نے غصے سے کہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تجھے، ہر لڑکی کو تو نے شادی کا کہا ہوا ہے، فلرٹ کرتے ان سے شرم نہیں آئی؟ بھائی، انہوں نے خود مجھے نمبر دیے تھے، میں نے نہیں کہا تھا، اور شادی کا اس لیے کہا، میں بیچاریوں معصوم لڑکیوں کا دل نہیں توڑ سکتا۔ فلرٹ کرتے تجھے شرم نہیں آئی؟ دل تو کر رہا ہے منہ توڑ دوں تیرا، ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ دیکھیں، اب دور رہیں، اب میرے منہ میں پہلے بہت درد ہے اور جسم میں بھی۔ عرش نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، جا رہا ہوں میں اپنی بیوی کے پاس، زوہان غصے سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ یار رک جانا زوہان، مجھ سے بات مت کرنا تو، وہ کہتا دروازے سے نکل گیا تھا، جبکہ پامیر، ایلیا اور ارمغان سامنے صوفے پر بیٹھے
टांग पर टांग चढ़ाए बैठे उसे देखते सेब खा रहे थे। अर्श गुस्से से उन्हें घूर रहा था। आई हेट यू, अर्श ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। आई हेट यू मोर, अरमगान ने उसे मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि अब की बार अर्श ने साइड से अपना फोन निकाला था और कैमरा खोले अपना चेहरा देखा था। उसने आंखें फाड़े मुंह खोले उन्हें देखा था और अगले ही लम्हे वो बेहोश हो चुका था। आखिर उसका चेहरा खराब हुआ था, वो किससे न बेहोश होता। दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा, इतना प्यारा चेहरा मासूम बच्चे का खराब कर दिया। शर्म तक नहीं आई बच्चे पर जुल्म करते हुए। अल्लाह करे आपकी शादी ना हो, अर्श अरमगान को कहते बेहोश हुआ था। तुझसे ज्यादा ढीठ मैंने आज तक नहीं देखा, अरमगान ने गुस्से से दांत पीसे थे। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।